Um, so in the night of 7th of 8th May, Pakistan attempted to engage a number of military bases, military targets in the northern and western region of our country, including Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Nal, Falodi, Uttarlai, and Bhuj. So how do you see this, sir? First and foremost, India's actions on the intervening night of the 6th and 7th May 2025 were absolutely consistent with public international law. Article 51 of the Charter of the United Nations gives every nation the right to take action, preemptive or post-emptive, in its self-defense. What India carried out were actions against terrorist organizations and terror camps, which have been consistently and systematically targeting India over quite a period of time. So therefore, whatever India did in the exercise of its right to national defense was absolutely consistent with public international law. Pakistan's response, on the other hand, is clearly escalatory. Attempts to try and target a spectrum of military establishments across the north and west of India is absolutely unacceptable. Pakistan has to understand that it is a state which is regarded as a sponsor of terror, not now, but going back many decades. It is the country which harbored Osama bin Laden while sucking in aid from the United States of America in the name of the war on terror. And therefore, under those circumstances, any escalatory steps by Pakistan would definitely be met by an equal and proportionate response by the government of India. And so therefore, it is in Pakistan's interests to hand over all those terrorists who have been targeting India over a period of time, whose lists have been supplied to Pakistan, so that they can be brought to justice. But sir, how do you see the response of the government today? The whole party meeting was convened, and all the opposition leaders were taken into the account. What the government is doing, what the actions of the government has been taken till now. All party in the all party meeting, it has been described, and it is being communicated to the opposition leaders. How do you see this? Until now, how do you see the response of our government? Because opposition parties are saying today Prime Minister was not there in the meeting. They made it an issue also. My stand has always been consistent that terror must be met with crippling force. Pakistan is a country where a nation does not have a military, but a military has a country. And that military has created and spawned an infrastructure of semi-state actors and uses terror as an instrument of state policy. So therefore, after the attack in the Baisran Meadow in Pahalgam, where people were targeted in the name of their religion, the steps which have been initiated by the government of India to bring the perpetrators, their masterminds, and the deep state of Pakistan to justice are absolutely, as I earlier stated, in consonance with our right to exercise the prerogative of our national defense. Insofar as the opposition is concerned, when it comes to a question of national security, there is no government, there is no opposition. The entire nation is one, and the entire nation stands behind the actions which have been initiated by the Indian Armed Forces in the defense of our country.
सर पाकिस्तान ने कोशिश करी है हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की, उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में, पठानकोट, उत्तरलाई, भुज तक जो है, जम्मू में, यहाँ पर भी उन्होंने कोशिश करी। हालांकि हमारे यहाँ हमारी आर्मी ने S-400 का जो है इस्तेमाल किया, जो सुदर्शन चक्र है, उससे उस हमले को नाकाम किया है। लेकिन एक और एस्केलेशन सिविलियंस ठिकानों के बाद अब सैन्य ठिकानों पर भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? जो कार्रवाई भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की रात को की थी, वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके लिहाज से पूरी तरह से वैध है। धारा 51 जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, वो ये कहता है कि हर मुल्क को ये अख्तियार है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी उचित और उक्त कदम वो सही समझता है वो उठा सकता है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने परिस्थितियों को और संवेदनशील बनाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका से पैसा ले रहा था और जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसका उक्त जवाब आया है और उसका उक्त जवाब आता रहेगा। पाकिस्तान को वो सारे आतंकवादी जिन्होंने भारत के खिलाफ पिछले कुछ दशकों में आक्रमण किया है और आतंकवादी गतिविधियां की हैं, जिनकी सूची निरंतर और बार बार पाकिस्तान को दी जा चुकी है, उन आतंकवादियों को भारत के हवाले करना चाहिए, जिसकी उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हो सके, उन्हें उचित दंड मिल सके। और अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता तो पूरा मुल्क हमारी सेना के पीछे खड़ा है और जो भी उक्त कदम सेना उठाएगी सारा मुल्क उनके साथ है। लेकिन सर आज जो जरूरत करी है पाकिस्तान ने और ये कोशिश करी जो 7 और 8 तारीख के बीच में, और हमारे सैन्य ठिकाने ये वो जगहें हैं जो पूरी उत्तर भारत के अंदर है, पश्चिमी भारत में दोनों ही फ्रंट के ऊपर उन्होंने कल तो सिविलियन हमारे इलाकों में किया, पुंछ में और कुपवाड़ा में, उरी में, वहाँ पर कई हमारे सिविलियंस को मारा है हमलों ने। और आज सैन्य ठिकानों पर भी जो है उन्होंने इस तरीके का जो है निशाना बनाया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुल्क के पास फौज नहीं है, फौज के पास मुल्क है और वो फौज पूरी तरह से आतंकवाद में लिप्त है और पूरी तरह से वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इट हैज़ बिकम अ रोग स्टेट। और इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि भारत के पास वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो ऊर्जा है, वो राष्ट्रीय एकता है आज, कि अगर पाकिस्तान चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको उसी के उसी तरह से उनको जवाब मिलेगा, उसी जबान में उनको जवाब मिलेगा। और इसलिए पाकिस्तान को ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जो भारत के खिलाफ वो कई दशकों से चला रहे हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत है। वो जो आतंकवाद का ताना बाना उन्होंने बुना है, उस आतंकवाद के ताने बाने को नस्ते नाबूद करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो कार्रवाई भारत ने की है उस कार्रवाई के तहत भारत का ये उत्तरदायित्व बन जाएगा, हमारी ये जिम्मेवारी बन जाएगी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कि ये जो आतंकवाद का ताना बाना है उसको हम ध्वस्त करते रहें। सर आखिरी सवाल, सरकार ने जो है आज ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी नेताओं को, पक्ष के नेताओं को भी जो जानकारी दी कि क्या कुछ अभी तक किया गया है, क्या किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि वो अभी साथ में खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी इस बात के लिए भी प्रश्न खड़ा किया कि प्रधानमंत्री को उस मीटिंग में रहना चाहिए था, वहाँ वो रहते, मौजूद रहते तो ज़्यादा ठीक होता, ज़्यादा जो है वो अच्छा एक संदेश जाता एकता का और अखंडता। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है
उसमें ना तो कोई सरकार है ना विपक्ष है, उसमें पूरा देश एक है। और जो भी कार्रवाई हमारे सैनिक बल करेंगे, चाहे वो स्थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, भारत और भारत के लोग, भारत का आवाम भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो।